Hello everybody, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in our today's video lecture series. So in a previous video lecture we have already covered about various types of meter like a digital voltmeter, oscilloscope, TDRM machine and so and we cover already the troubleshooting steps for the networking system. So in this lecture we are going to discuss about the next topic is a monitoring system of the networking. So let's start. So monitoring and troubleshooting tools of our networking system. So what is monitoring tools and troubleshooting tools for our networking system? So first of all, here after a network has been installed and is operational, administrator needs to make sure it performs effectively. Once again, after a network has been installed and is operational, administrator needs to make sure it performs effectively. Then to do this, the administrator will need to manage and keep track of every aspect of the network's performance. So whenever any network installation will be completed, then you have to need to make sure it perform effectively, and do this the administrator will need to manage and keep track of every aspect of network's performance. Okay, so the scope of network management program depends on first of all the size of network, second one is the size and capabilities of the network support staff, third one is the organization's network operating budget, fourth one is the organization acceptance of the networks. So these all scope for network management program, and that is depends on this all scope. So once again, which type of scope for the managing network program? So the first of all size of network, second one is the size and capabilities of the network support staff, third one is the organization's network operating budget, and the last one is the organization's acceptance of the network. So the small peer-to-peer networks consisting of 10 or fewer computers can be monitored visually by one support person. So however, a large network or wide area network, WAN stands for wide area network, might need dedicated staff and sophisticated equipment to perform proper network monitoring. So whenever we used small peer-to-peer networks consisting of 10 or fewer computers can be monitored visually by one support system, otherwise we can also say supported visually by one support person. But however, a large network or a WAN wide area network might need a dedicated staff and sophisticated equipment to perform proper network monitoring. Okay, next our next topic is a performance monitor. So how performance monitor take over the networking system? So first of all, here most current network operating system include monitoring utility that will help network administrator keep track of network server performance. Once again, most current network operating system, now in a general days, most current networking operating system include monitoring utility and that will help network administrator keep track of network server performance. Next, these all monitors can view OS, it means operating system, in both real time and recorded time. So which type of monitor can view operating system in both real time and recorded time? For this all, so these monitors can view operating system in both real time and recorded time for processors, hard disk, memory, network utilization and the network as a whole. So this is our performance monitor of take over our network system. Okay, next, this monitor can record the performance data, send an alert to the network manager,
then start another program that can adjust the system back into acceptable ranges. So this all monitor can be cover the performance as record performance data, send alert to the network manager, and start another program that can adjust the system back into acceptable range. It means that whenever we perform any on tab in our PC, so record the our all performance data, then send any alert notification to our network manager, either start another program and that can adjust by our system and return back into acceptable ranges. So this is our the performance criteria, and that is decided by our monitor. Okay. Next, our next point is a network monitor. So what is network monitors? So network monitoring system are used to ensure availability and overall performance computer, and that is host and network services. Once again, network monitoring systems are used to ensure availability and overall performance computer, host and network services. So a network monitoring system is capable of detecting and reporting failure of devices connection, or this include data transmission rate, throughput, errors rate, downtime, uptime, use time percentages, and response time to user and automated input and request. So यहाँ पे नेटवर्क मॉनिटर हमें ये कह रहा है कि whenever network monitoring systems are used to ensure availability and overall performance computer, host and network services, then it monitoring capable of detecting. So ये हमारा जो network monitoring system है वो at a time detect कर सकता है, अदरवाइज़ हमारा सिस्टम इंटरप्ट हो गया है, अदरवाइज़ फेलर हो गया है, हमारा डिवाइस कनेक्शन इंटरप्ट हो गया है, तो क्या करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम? रिपोर्टिंग फेलर्स ऑफ डिवाइस कनेक्शन. सो हमारा जो डिवाइस कनेक्शन फेल हो चुका है उसका रिपोर्टिंग करेगा, एंड दिस इंक्लूड डेटा ट्रांसमिशन रेट, थ्रूपुट, error rate, downtime, uptime, use time percentage. Otherwise we can also say as this all rates, error, down, up, use, this all rates include in data transmission, उसका भी monitoring करके वो report करेगा. And response time to user and automated input and requesting. Okay. Next, SNMP, and that is very most important topic for GTU exam, and this question again and again asked in our GTU exam, having 3 marks, either 4 marks. So this question is the most important questions for our GTU exam. So let's start. What is SNMP? So SNMP stands for Simple Network Management Protocol. Once again, in a GTU exam, this SNMP asked having 2 marks with its full form. So SNMP stands for Simple Network Management Protocol. Let's start. SNMP, so network management software, follows standards created by network equipment vendors. In an SNMP environment illustrated in figure, programs, and that is called agents, are loaded onto each managed device. The agents monitor network traffic in order to gather statistical data, and this data is stored in management and information base, so that is known as our MIB. So which type of MIB store the data for our SNMP? So the agent monitor network traffic in order to gather statistical data, and this data is stored in management information base, and that is known as MIB. So SNMP is nothing but our simple network management protocol, and whenever it follows standard created by network equipment vendors, then illustrated in figure,
programs, and that is known as agents, are loaded onto each managed device. So network management software follows standard created by network equipment vendors in an SNMP environment illustrated in figure. Programs, and that is known as agent, and these agents are loaded onto each managed device, and the agents monitor network traffic in order to gather statistical data, and this data is stored in MIB, stands for Management Information Base. नेक्स्ट हमारा जो कमांड है पिंग कमांड, तो ये वाला हमें पहला जो प्रैक्टिकल था हमारा एनएमई का, वहाँ पे हमने परफॉर्म किया हुआ है. सो वंस अगेन यही हमें रिवाइज करना है पिंग. सो पिंग का हम यूज़ क्या करेंगे और ये उसका वर्किंग जो है नेटवर्किंग सिस्टम में ये कैसे वर्क होता है. सो पिंग जो है वो बेसिकली आप लोगों को यदि चेक करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना जो पीसी है वो ओपन कर लो, और जो टास्क बार में सर्च का बटन दिया हुआ है सर्च, वहाँ जाके आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा राइट डाउन करो, और कमांड प्रॉम्प्ट राइट डाउन करने से आप लोगों को ब्लैक कलर का कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीन है वो आपको विंडोज स्क्रीन पे दिखाई देगा. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ पिंग. सो पिंग का कमांड है वो क्या करता है, तो उसका वर्किंग ये है टू वेरीफाई एंड टेस्ट द कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट और पैकेट्स. सो पिंग जो है हमारा, उसका मीनिंग क्या है, हमारा जो डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ है तो उसको चेक करता है एंड वेरीफाई करता है. सो यदि आप लोगों के पीसी में नेट नहीं आ रहा है, आपकी लैन कनेक्टिविटी आप लोगों ने डाली हुई है, अदरवाइज़ आपने या ड्राइवर से या अपना पर्सनल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हुआ है नेट, और आपको कोई नेट में एरर आ रहा है, तो आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इस तरह से पिंग का कमांड डालकर चेक कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, सी यूज़र एक्स्ट्रा एंड देन यू हैव टू राइट पिंग कमांड, एंड ये मेरा जो है वो एड्रेस है जिसे हम आईपी एड्रेस, इट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं. सो 160.160.18.54. सो हियर दिस इज़ माई 32 बाइट्स ऑफ डेटा विथ एड्रेस. इफ़ यदि जो हमारे पीसी में नेटवर्क एरर कनेक्शन आ रहा है तो मैं इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरी स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन है, और वहाँ पे मैंने आप लोग देख सकते हैं, देखो ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ अभी PING, वो कमांड मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में दिया हुआ है. सो यदि मेरा इंटरनेट कनेक्शन वेरी स्लो है या कुछ नहीं आ रहा है, तो आप लोगों का ये जो पिंग कमांड डालोगे वहाँ पे रिक्वेस्ट फेल आ जाएगा. इट मीन्स कि आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा रिक्वेस्ट फेल आएगा. यदि हमारा प्रॉपर चल रहा है नेट तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शंस में दिखाई देगा, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने खुद से रन किया हुआ है ये प्रैक्टिकल. सो आप लोग भी अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ऐसे पिंग कमांड भी परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिंग द स्पेसिफाइड होस्ट अंटिल स्टॉप, या अदरवाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी कमांड टैग्स है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट फेल नहीं हो रही है. वाई? बिकॉज मेरा अभी जो पीसी में नेट है वो प्रॉपर चल रहा है, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर वहाँ पे सेंड हो गई है, और वहाँ से मुझे रिस्पांस भी मिल गया है, और यहाँ पे मेरी कोई भी रिक्वेस्ट फेल नहीं हुई है. यदि आप लोगों की रिक्वेस्ट फेल होती है तो आप लोगों को इस तरह से मैसेज शो नहीं होगा, आपके कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे रिक्वेस्ट फेल आएगा, और आप लोगों की जो रिक्वेस्ट फेल हो रही है वो 1 बाय 1 स्क्रॉल होके रिक्वेस्ट फेल TTL 0, रिक्वेस्ट फेल TTL 1, सो एंड सो इस तरह से स्क्रॉल होगा. लेकिन यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली पिंग का हो गया है, इसीलिए मुझे इस तरह का आउटपुट दिखाई दे रहा है. ओके, सो पिंग का क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, टू वेरीफाई एंड टेस्ट द कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट और पैकेट्स,
इस तरह से कमांड आप लोग डाल सकते हो। और यहाँ पे पिंगिंग 16.160.18.54 विथ 32 bytes of data, and whenever this type of IP address using ping and request to receiver, and then receiver obtain this request from our ping connectivity and then reply from 160.160.18.54 with this domain IP address. Okay, so this is our ping output command. Then next one is traceroute, and we can also say as a traceroute. So here traceroute command. So what is traceroute? So let's start explanation about traceroute. So typically once the ping utility has been used to determine basic connectivity, हम लोग ping का क्यों यूज़ करते हैं? हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको वेरीफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए. So typically once the ping utility has been used to determine the basic connectivity, but now figure below show the example of traceroute utility begin used to find path from host inside an office to www.google.com. मैंने आप लोगों को VPN में अंडरस्टैंड करवाया था. जो हमारा www.google.com है वो जब रिसीवर के पास जाता है तो ये वाला जो है ऐसे फॉर्म में नहीं जाता, उसका न्यूमेरिक डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकें 160.160, तो ये हमारी न्यूमेरिक डिजिट है. तो जो www.google.com आप लोग यदि ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो ब्राउज़र में सर्च आप लोग करते हो www.google.com, वो आपकी रिक्वेस्ट है और आपको google.com साइट पे जाना है तो ये वाली रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी? सर्वर में जाएगी. इट मीन्स रिसीवर के पास जाएगी. तो रिसीवर के पास ये वाली जो है www.google.com ऐसे फॉर्म में नहीं जाएगा. इसका न्यूमेरिक जो आईपी एड्रेस है वहाँ पर कन्वर्ट होकर रिसीवर के पास जाएगा और रिसीवर जो है वो न्यूमेरिक डिजिट में ही एक्सेप्ट करेगा और वहीं से रिप्लाई फिर से रिक्वेस्ट जो कर रहा है उस क्लाइंट को रिप्लाई करेगा. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने फिगर में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रेजर्ट और उसके बाद मैंने न्यूमेरिक डिजिट में एड्रेस डाला है 160.160.18.54. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रेजर्ट के बाद आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक डिजिट में एड्रेस डाला हुआ है. तो यहाँ पे जो भी मेरी कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे दिखाई देगी. कितने डिवाइसेस के साथ मेरा ये जो ट्रेजर आउट है वो रूट करके मुझे यहाँ पे मैक्सिमम जो है ट्रेजर्ट वो मुझे दिखाई देगा. तो यहाँ पे मैंने अपना पीसी में जो ट्रेजर्ट डाला है कमांड, तो वहाँ मुझे मैक्सिमम ऑफ 30 होप्स 30 डिवाइसेस होप्स के ट्रेजर आउट मुझे मिला है. सो आप लोग भी अपना कमांड यहाँ पे मैंने जैसे ट्रेजर्ट में डाला हुआ है वैसे आप लोग भी अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ये वाला कमांड टाइप करके देख सकते हो. सो ये हमारा ट्रेजर्ट वाला है, वो भी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में बारी बारी से आस्क हो सकता है. तो आप लोग ये वाला कमांड भी प्रिपेयर कर लेना. नेक्स्ट हमारा जो है वो अब जाना है आईपी कॉन्फिग. यहाँ पे आईपी कॉन्फिग में मैंने इफ़ कॉन्फिग लिख दिया है. डोंट वरी, हम लोग आईपी कॉन्फिग या आईएफ कॉन्फिग भी लिख सकते हैं. ओके, सो इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, इट स्टैंड्स फॉर आईपी कॉन्फिग. सो इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा कमांड है वो क्या करेगा? मैं आपको पहले बेसिकली अंडरस्टैंड करवाती हूँ. आप लोग जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो उसमें आप आईपी कॉन्फिग डालोगे तो आपके पीसी में कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न है, आपकी पीसी में कौन सा आईपी एड्रेस है, इट मीन्स आपकी सिस्टम का कौन सा आईपी एड्रेस है, उसका डोमेन क्या है और उसका सबनेट मास्क क्या है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें
कौन से कमांड से मिलेगी? IP कॉन्फिग से। वंस अगेन IP कॉन्फिग जो हमारा कमांड है वो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा? तो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न कौन सा है, हमारी सिस्टम अभी जो हमारी PC में चल रही है उनका IP एड्रेस क्या है, उसका सब नेट मास्क क्या है, उसका डोमेन क्या है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें IP कॉन्फिग कमांड से मिलेगा। सो डिस्प्ले द करंट TCP IP, इट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP it stands for internet protocol configuration and display the information on server. And this is our Windows IP configuration, it means Windows Internet Protocol configuration. So आप लोगों को इस तरह से अपने PC में जाकर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टास्क बार में ऐसे सर्च है, तो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट अपनी विंडोज स्क्रीन पे शो होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को इस तरह से IP कॉन्फिग कमांड राइट डाउन करना है। जैसे ही मैं IP कॉन्फिग कमांड राइट डाउन करके एंटर जो है हमारी कीबोर्ड में वो की प्रेस करूँगी, तब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विंडोज़ IP कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारी है एथरनेट एडेप्टर एथरनेट की वो मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा सबनेट मास्क दिया हुआ है IPv4, इट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस मेरा दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो आप लोगों को भी यदि आपका इंटरनेट एड्रेस यदि जानना है, आप लोगों का सिस्टम का सबनेट मास्क क्या है वो जानना है, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है वो दिखना है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके IP कॉन्फिग डालते हो कमांड और उसके बाद एंटर की प्रेस करोगे तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो PC है उसमें IPv4 एड्रेस क्या है 192.168.1.25 है। मेरा सबनेट मास्क है 255.255.255.0 है। उसके बाद मेरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है वो डिपेंड्स ऑन आवर सिस्टम होता है। सो डोंट वरी, इसको याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का प्रॉपर IP एड्रेस के साथ मिला हुआ है वो है 192.168.1.1। सो ये गेटवे है वो इसीलिए क्रिएट होता है यदि कोई फायरवॉल क्रिएट करना हो, यदि कोई आपको प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना हो, तो उसके लिए गेटवे के बिना हम कुछ भी जो क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट किया हुआ है जो VPN है सपोज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो उसके लिए भी गेटवे कंपलसरी होना चाहिए ताकि हम फायरवॉल क्रिएट कर सकें। ओके, नेक्स्ट NS लुकअप। So the display all rewards of domain name server, then we have to use NS lookup command. So NS lookup command जब ऐसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में डालेंगे तब इस तरह से हमें आउटपुट में शो होगा। सो मैंने अपने PC में NS लुकअप भी कमांड परफॉर्म किया था, तो मुझे इस तरह के यहाँ पे मैंने पहले गलती से NA लुकअप एंटर किया था, लेकिन NA लुकअप कोई हमारा रिकॉग्नाइज है ही नहीं कमांड, सो एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने NS लुकअप एंटर किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा डिफ़ॉल्ट सर्वर इस तरह का है और मेरा एड्रेस जो है गेटवे के बेस पे वो इस तरह का है। ओके, नेक्स्ट नेटस्टेट। सो नेटस्टेट क्या करेगा? So Netstate display the TCP/IP protocol session connection and open port connection information। एंड ये जो नेटस्टेट कमांड आप लोग यदि आपके कमांड प्रॉम्प्ट में डालते हो तो वहाँ से ही आपका जो कनेक्शन है वो अनेबल हो जाएगा, इट मीन्स एक्टिव हो जाएगा। सो whenever you want to enable either active the connection between client and server, then you have to enable, otherwise active the connection, give the command netstate
ऑन योर सिस्टम। ओके, सो आप लोग कभी भी अपना कनेक्शन जो है उसे अनेबल करना चाहते हैं या एक्टिव करना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा, नेट स्टेट। तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने नेट स्टेट किया तो मेरा कनेक्शन जो है वो एक्टिव हो गया, और एक्टिव हो जाने के बाद आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा प्रोटो लोकल एड्रेस, फॉरेजियन एड्रेस एंड स्टेट। सो ये जो हमारा है वो एक्टिव हो गया है कनेक्शन। सो एक्टिव कनेक्शन करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, नेट स्टेट कमांड। Then next, root. So the last of the tools covered in this article is the root utility, and this utility is used to display the current status of routing table on host. So root जो है, जो generally basically now in earlier days we are used for display a current status for routing table on our hosting system. Okay. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये वाला जो टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो आई होप डियर ऑल स्टूडेंट you all easily understand about this all commands of our networking system, monitoring and controlling the tools of our networking system. So आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है सब्जेक्ट का, उसमें भी आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और गूगल क्लासरूम में जो हमारा लेक्चर आता है वहाँ पर भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। सो ये वाला जो टॉपिक है अब इंटरनल सिक्योरिटी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। If anyone have a doubt then please comment on Google Classroom, otherwise you can also comment on our subject WhatsApp group. Okay.